In the approximate load flow study, we are able to convert the non-linear equation into the linear one. By some approximation, we are able to convert non-linear equation for P into the linear equation of P and delta. Then simply by solving P and delta, we find the equation of P delta, we find the delta 2, delta 3, delta 4, and then by putting those value of delta 2 and voltages, delta and voltages into the non-linear equation, then we can find the Q1, Q2, Q3 also. But in that method, the result obtained, it is a approximate. Even approximate is a good approximation. 95 or 98% results are there. But even then, if we want to find out the exact solution, then we have to solve non-linear differential equations. Our power flow equations are non-linear equation, and we have to solve non-linear differential equations. So one of them method is the Gauss-Seidel method, and another is the Newton-Raphson method. Then one may be the fast decoupled Newton-Raphson method, and others also. So there are methods of solving the non-linear differential equation. Now to solve the non-linear differential equation, we have to make the iterative technique, and we know we will consider that first bus is the slack bus. Some buses are PV bus. We will give them numbering. All the PV buses are given numbering, say numbering from 2 to M. Bus number 2, 3, 4, 5 up to M. They are the PV buses. We are considering here, and M plus 1 to N, because total number of buses are N. First bus is the slack bus. 2 to M. M may be any number, 4, 5, 6, 7. So 2 to M are the PV buses, and rest will be numbered as M plus 1 to N. So once we know this, and in addition to this, if it is a PV bus, then we know P and V when we have to calculate the Q. And if it is PQ bus, then we have to calculate the voltage and delta. So it means we have to calculate the delta and voltages. Either it is a PV bus or PQ bus. Their P is known. So P is known for all 2 to M, but delta is not known. So delta आपको बस नंबर 2 से लेके बस नंबर N तक आपको डेल्टा निकालना है. एंड वोल्टेजेस कहां से निकालना है? वोल्टेज कहां से कहां तक निकालना है? वोल्टेज निकालना है. देखिए पीवी बस देन पीक्यू. जो पीक्यू बस है, पीक्यू बस कौन सी है? M+1 से लेके N तक उनका वोल्टेज निकालना है. तो इवन इफ द वोल्टेज निकालना है, एंड व्हाट डू मीन बाय डेल्टा? डेल्टा क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेल्टा? वोल्टेज तो आपको पता है, वोल्टेज बस नंबर 2, वोल्टेज बस नंबर 3, वोल्टेज. तो इफ इट इज पीक्यू बस आर M+1 to N. Voltage you have to find out voltage at bus number M+1, voltage at bus number M+2, voltage at bus number M+3, then voltage at bus number N, then delta 2 to delta N. तो what do you mean by delta? डेल्टा होता क्या है? कौन बताएगा? ब्रिजेश, कैन यू टेल मी व्हाट इज डेल्टा? किस चीज का है डेल्टा? डेल्टा इज द एंगल ऑफ व्हाट विच क्वांटिटी? लोड एंगल सर. पार्डन? लोड एंगल. लोड या नोड? लोड एंगल सर. लोड नहीं. और कौन बताएगा व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा किस चीज का एंगल है? कौन बताएगा? मुकुल, मिस्टर मुकुल है कि नहीं है? मीटिंग में है मुकुल या नहीं? प्रेजेंट सर. मुकुल सर. हाँ, तो आवाज नहीं आ रही है. यस, ऑफ करके चले गए क्या? सर वो थोड़ा नेट का दिक्कत है सर. पावर एंगल है सर. एंगल किस चीज का है? पावर एंगल किस चीज का है? एंगल बिटवीन वोल्टेजेस. V and I. नहीं, not V and I. Angle between different bus voltages. Yes sir. हाँ, V2 is the angle of voltage of bus number 2.
with reference to slack bus. डेल्टा थ्री इज द एंगल ऑफ बस एट वोल्टेज नंबर 3, V3 का एंगल डेल्टा 3 है। तो कहने का ये हुआ कि आपको देखिए वोल्टेज जब कहते हैं तो मैग्नीट्यूड एंड डेल्टा कहते हैं तो उसका एंगल आ गया, बट व्हेन वी सिंपली से फेसर वोल्टेज V इट कंसिस्ट ऑफ बोथ। इवन अगर आपको डेल्टा 2 भी निकालना है तो V2 निकालेंगे, उसमें दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा डेल्टा भी होगा। तो हमें वोल्टेज, इसका मतलब क्या है, सबका वोल्टेज का इक्वेशन लिखना है। P और Q का इक्वेशन तो मालूम है, वोल्टेज का अगर इक्वेशन लिखा तो डेल्टा का ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंगल ऑफ वोल्टेज द डेल्टा, तो वोल्टेज का इक्वेशन लिखना है सबसे। हाउ टू राइट द एंगल फॉर वोल्टेज। देखिए दिस इज द करंट इन द गॉस सीडल मेथड, दिस इज द करंट I बस इजिकल टू Y बस B बस। यहाँ से हम ith बस में जो करंट इंजेक्ट हो रही है उसकी इक्वेशन आपने लिखा II इजिकल टू YI1 V1 YI2 V2 YIN Vn। दिस इज द करंट इंजेक्टेड बस नंबर I। यहाँ से हमें एक्चुअली में वोल्टेज की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, वोल्टेज एट इक्वेशन एट ith बस। यहाँ से देखिए if you write VI voltage at the ith bus, it will be the I1 minus rest of the elements, I1 minus rest of the element except this। तो ये V1 हो गया, 1 by YI हो गया, और ये I1 minus YI1 V1 YI2 V2 YI3 V3 YIN Vn, all this ये आ गया, by means YIN V1 YI2 V2 YIN Vn, or you can say YIP P is equal to 1 to n, but P is not equal to I। P इक्वल टू I नहीं होगा क्योंकि I तो आपने यहाँ बाहर ले लिया था। तो इज दिस इक्वेशन क्लियर? ये इक्वेशन क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हाँ, एंड वी नो कॉम्प्लेक्स पावर S, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर S इक्वल टू PI माइनस JQI, पहले बताया हुआ है। इट इज इक्वल टू B कॉम्प्लेक्स कंजुगेट I। यहाँ से हमने I की वैल्यू, I एट बस नंबर I, करंट एट बस नंबर I is calculated from here। यहाँ से I निकाला, P माइनस JQ डिवाइड बाई BI कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इसको यहाँ रखा। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर वोल्टेज। ith बस का वोल्टेज का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर वोल्टेज ऑफ ith बस। ओके, तो इक्वेशन फॉर Q, ओके, इक्वेशन फॉर वोल्टेज हो गया। इक्वेशन फॉर P एंड Q ऑलरेडी नो, पहले आपका देखिए ऊपर किया हुआ है, पेज अप। इक्वेशन फॉर P एंड Q, P एंड Q का इक्वेशन यहाँ देखिए, इक्वेशन फॉर P एंड Q ऑलरेडी यू नो दिस, ये हमने निकाला हुआ। लोड फ्लो इक्वेशन, ये दीज आर कॉल्ड द पावर फ्लो इक्वेशंस, ये निकाली हुई है। सो वी नो द इक्वेशन फॉर वोल्टेज, वी नो द इक्वेशन फॉर Q। देखिए P की इक्वेशन की इसलिए जरूरत नहीं है, आइदर इफ इट इज ए PV बस और इट इज ए PQ बस, P इज नॉन टू ऑल, P तो दोनों तरफ है, स्लैक बस को छोड़ के P तो दोनों तरफ है, तो इसलिए उस इक्वेशन को जरूरत नहीं पड़ी। सो वी नो दिस इज द नॉन लीनियर इक्वेशन फॉर द वोल्टेज, दिस इज द नॉन लीनियर इक्वेशन फॉर द Q। नाउ हाउ टू सॉल्व और हाउ टू प्रोसीड टू सॉल्व इट। नाउ वी नो दैट our first was the slack bus. First was the slack bus means we know V1 and delta 1. V1 is 1 volt we consider per unit, and delta is considered as zero angle. Now as I just told, 2 to m are the PV buses, 2 to m are the PV buses. So if PV buses are there, तो हमें निकालना क्या है? If P and V are known, then we have to calculate Q and delta. तो यहाँ हमने 2 to m के लिए QI और डेल्टा I की वैल्यू लिखें, QI एंड डेल्टा I। QI यही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, बट हियर इट विल बी फ्रॉम m प्लस 2, I की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 होगी या m अप टू m होगी, m के बियॉन्ड नहीं होगी Q की वैल्यू। सिमिलरली डेल्टा की इक्वेशन ये है, डेल्टा इक्वेशन वोल्टेज की इक्वेशन निकाला, एंगल ऑफ दिस सेम इक्वेशन देखिए, दिस इज द सेम इक्वेशन, ओनली एंगल ऑफ दिस इज द डेल्टा। तो इसमें डेल्टा I की वैल्यू क्या होगी? 2 to m होगी। So this is the equation for QI and delta I by putting the value equal to 2, 3, 4, 5. Here 2, then 3, then 4, then 5 up to m. Few equation you can write here. कुछ equation आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। Similarly, now m plus 1 to n are the PQ bus. अगर ये PQ बस है तो हमें क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है, तो ये वोल्टेज की इक्वेशन लिख दी सेम, ये हमारी वोल्टेज की इक्वेशन है, रिपीट कर दी। ये कितनी इक्वेशन लिखेंगे? m+1 से स्टार्ट होके n तक, जितना बड़ा सिस्टम है। अगर तो इसमें दिस इज नॉट ए वन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन नहीं है, दीज आर द इक्वेशन फ्रॉम m+1 to n। नाउ वी आर टॉकिंग इन जनरल,
सिस्टम का साइज n हो सकता है, n कैन बी एनी नंबर। अगर n सपोज 100 है तो आपको, और m अगर मान लो 40 है तो 41, 42, 43, 44 से लेकर 100 तक ये कितनी इक्वेशन, 60 इक्वेशन लिखी जाएंगी। यहाँ 40, ये अगर ये m 40 है तो यहाँ कितनी इक्वेशन, एक स्लैक बस निकालने 39 इक्वेशन, 39 ये 39 ये 39 39 और ये 60 इक्वेशंस, इतनी इक्वेशंस आपकी इसमें आ जाएंगी। नाउ एंड ऑल आर नॉन लीनियर इक्वेशंस। नाउ व्हाट वी विल डू, देन वी राइट द एल्गोरिथम। इसको देखिए क्या करते हैं, नॉन वैल्यूज आर, जो नॉन वैल्यूज है उसे नोट करेंगे, दैट v1 एंड डेल्टा 1 इज नॉन स्लैक बस, p2 आइदर इट इज ए pb बस और pq बस। p तो सबका पता है तो हमने ये नोट कर लिया, p2 से pn। वोल्टेज pb बसेस है अप टू m, वोल्टेज पता है, v2 लेके vm तक वोल्टेज पता है, qm प्लस से qm पता है, ये लोड ये हो गई आप qm प्लस 1 से लेके qn, दिस इज qn। तो यहाँ आपकी लोड बसेस है, दिस इज द नॉन, ये हमें मालूम है, दीज पैरामीटर्स आर नॉन। अब जो मालूम नहीं है, अब देखिए जो मालूम नहीं है जो मालूम नहीं है वो कौन सी है, वो निकालने हैं। p2 टू pn पता है तो डेल्टा 2 टू डेल्टा n नहीं मालूम है, तो डेल्टा 2 टू डेल्टा n को 0 एज्यूम कर, जो चीजें निकालनी है या जो गिवन नहीं है उनको हमने 0 एज्यूम कर लिया। ओके, दे आर एज्यूम्ड एज ए 0 एंड द हियर यू सी वोल्टेज v2 टू vm पता है और निकालने क्या है, m प्लस 1 से लेके vn तक निकालना है, तो उसका इक्वल टू 1 पर यूनिट वी एज्यूम कर लिया। मींस व्हाटएवर इज नॉट गिवन, इफ एंगल इज नॉट गिवन एज्यूम इट इक्वल टू 0, इफ वोल्टेज इज नॉट गिवन देन एज्यूम इट एज इक्वल टू 1 पर यूनिट। ओके, इज दिस ओके अप टू नाउ, यहां तक ठीक है। केवल इसमें यही बताया है, जो चीज गिवन है वो नोट कर लेंगे, जो गिवन नहीं है उसे एज्यूम कर लेंगे। अगर डेल्टा गिवन नहीं है तो 0 एज्यूम करेंगे, वोल्टेज गिवन नहीं है किसी बस का तो 1 एज्यूम करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। अब देखिए इसमें ये बार बार कैलकुलेट, क्योंकि ये आपको बताया जैसे इसकी 2 से लेके m बसेस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था 39 इसकी बस होंगी, 39 बार बार ये 39 बार ये करना पड़ेगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पी आई माइनस जे क्यू आई वाई आई, ये जो है ना ये पी आई माइनस क्यू आई डिवाइड बाई वाई आई, ये वाई आई अंदर ले गए, पी आई माइनस क्यू आई वाई आई, इसको ए एज्यूम कर लिया बार बार हमने, इसको लिखने में आसान रहेगा ए। ऐसे ही वी आई पी, ये वाई आई पी डिवाइड बाई वाई आई, ये वाई आई पी डिवाइड बाई आई, इसको हमने वी आई पी कह दिया फॉर सिंप्लिसिटी, सिंपल पर्पज ओनली। नाउ व्हाट वी डू, इसमें हम करते क्या है, जो चीजें गिवन थी वो नोट कर ली, जो गिवन नहीं थी वो एज्यूम कर लिया। अब गिवन और एज्यूम के अकॉर्डिंगली, अब इट मींस फॉर दैट पर्पज, हियर यू सी नाउ अगेन कम टू दिस। अब आपके पास ये सारी इक्वेशन लिखी हुई है, यहां से लेके अगर हमने एज्यूम किया था m इज 40 तो 39 ये और 60 इक्वेशन ये। अब इसमें देखिए आइदर इट इज गिवन और नॉट गिवन, ये गिवन है और ये एज्यूम्ड है, तो गिवन और एज्यूम्ड को मिलाकर सब कुछ मालूम है। सो व्हेन वी नो एवरीथिंग वी पुट इट हियर, इन सबको यहां रखेंगे। मींस ये 39 इक्वेशन में इसमें एवरीथिंग इज नॉन, सो वी कैन फाइंड द क्यू आई, एवरीथिंग इज नॉन हियर, वी कैन फाइंड द डेल्टा आई। कब से लेके कहां तक, 2 से लेके 39 तक। देन इसमें वी नो एवरीथिंग हियर, सो वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज फॉर ऑल द बसेस। वोल्टेज मींस वी आई, कहां से लेके कहां तक, m प्लस 1 से लेके n तक। बकाया तो गिवन है, तो ये नॉन गिवन था, तो हमने यहाँ क्या निकाला, क्यू आई, डेल्टा आई, वी आई, ये सभी जो अननोन थे, 39 क्यू आई अननोन थे, 39 डेल्टा आई थे और 60 वोल्टेज आई थे, ये हमने सभी क्या किया, इसको निकाल लिया। निकाले, बट दे आर नॉट द करेक्ट वैल्यूज, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है? जो आपने ये निकाली है दे आर नॉट द करेक्ट वैल्यूज बिकॉज इसमें जो आपने पैरामीटर्स पुट किए हैं वो अप्रोक्सीमेट भी हैं और करेक्ट भी हैं, इसमें नॉन वैल्यूज भी हैं और कुछ आपकी प्रिज्यूम्ड वैल्यू भी हैं। तो प्रिज्यूम्ड वैल्यू की वजह से जो निकाले हैं दे आर नॉट द करेक्ट वैल्यूज। ओके, अब जो करेक्ट नहीं है अब क्या करेंगे, अब लेकिन ये देखिए डेल्टा, इसमें देखिए ये डेल्टा, सारे डेल्टा चाहिए इसमें। जब वोल्टेज करेंगे ना, ये वोल्टेज, यहाँ देखिए ये वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज है, तो ये सारे वोल्टेज आएंगे, V1 V2 V3, ये सारे वोल्टेजेज हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये V1 V2 V3 यहाँ पे सारे हैं।
तो पहले तो आपके वोल्टेज आपने 111 एज्यूम किया था और डेल्टा को 0 एज्यूम किया था। अब इसमें जो डेल्टा रखेंगे वो एज्यूम्ड वाला सेकंड राउंड में, इट वाज द फर्स्ट इटरेशन, इन द सेकंड इटरेशन अब डेल्टा की वैल्यू जो नॉन वैल्यू है वो रखेंगे यहाँ पे, एंड वोल्टेज की वैल्यू ये वाली रखेंगे। कुछ नॉन थे, अननोन वोल्टेज जो हमने 1 एज्यूम किया था उसकी जगह ये वाली वोल्टेज रखेंगे। तो पहले हमने प्रिज्यूम्ड वैल्यू से ये कैलकुलेट किया, अब जो फर्स्ट इटरेशन की जो वैल्यूज आई उनको यूज करके ये वैल्यूज कैलकुलेट किया, वो भी करेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो भी आपकी करेक्ट वैल्यूज नहीं थी जो यहाँ रखा था। वो भी नेक्स्ट जो फर्स्ट इटरेशन से पहले था उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ठीक थी, बट दे वर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज। अब हमने ये वैल्यू रखेंगे। देन थर्ड इटरेशन में फिर प्रीवियस वैल्यू जो आई थी। तो इन दिस वे वी गो ऑन इटरेशन। हर बार वी डू ऑन इटरेशन एंड इटरेशन अगेन एंड अगेन, एंड एट ईच इटरेशन वी विल पुट द न्यू वैल्यूज ऑफ डेल्टा एंड वोल्टेज टू कैलकुलेट दिस। इससे क्या होगा, आफ्टर फ्यू इटरेशन, आफ्टर 5, 10, 6, 7 इटरेशंस, इनकी वैल्यू सपोज डेल्टा 2 की वैल्यू जो पिछले इटरेशन में आई थी, सपोज 9th इटरेशन में और 10th इटरेशन में वैल्यू अगर सेम आ गई या एरर बहुत कम आ गई, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, ऐसी वोल्टेज का 9th और 10th में सेम आ गया, देन वी कैन से अब दोबारा से सेम वैल्यू रखेंगे तो कोई फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा। दैट वैल्यू इज कंसिडर द एग्जैक्ट वैल्यू और करेक्ट वैल्यू। इसको कहते हैं गॉस मेथड ऑफ सॉल्विंग द नॉन लीनियर इक्वेशन। इसको इसी से इक्वेशन जो अननोन वैल्यूज से जो हमारी वैल्यूज एज्यूम्ड वैल्यूज हैं उसी से रख के हमने ये वैल्यूज अननोन वैल्यूज निकालते हैं, उन अननोन को फिर इसमें रखते हैं, फिर ये नहीं निकालते हैं। गो ऑन डूइंग दिस इटरेटिवली टिल द 2 consecutive values so calculated by iterations are same or nearby same, then we stop it. This is called the Gauss method of solving the non-linear equation. Is this point clear up to now or not? Yes, sir. Now this is a Gauss method. Then what is the Gauss-Seidel method? ये तो Gauss method हो गया। अब Gauss-Seidel method क्या है? Gauss-Seidel method में थोड़ा सा करेक्शन है। जैसे सपोज करिए यहाँ डेल्टा टू निकाला और फिर जब ये डेल्टा 3 आएगा तो अभी तक क्या था, हमने क्या कहा था, सारी जो प्रिज्यूम्ड वैल्यू है सब में लिखा, सब में ये रखा और ये वैल्यू निकाला। अब क्या करेंगे, प्रिज्यूम्ड वैल्यू डेल्टा 2 तो प्रिज्यूम रखेंगे, लेकिन यहाँ डेल्टा 3 में, अब डेल्टा 3 जब करेंगे तो डेल्टा 2 प्रिज्यूम नहीं रखेंगे क्योंकि डेल्टा 2 ऑलरेडी आ चुका है। डेल्टा 4 में डेल्टा 2 डेल्टा 3 जस्ट आ चुका है। तो आप हमारी मीन्स रिसेंट वैल्यू in place of putting these unknown value or pre-iterated value, we will use these value just we have obtained. जो value just निकली है वो हम साथ के साथ इसमें रखते जाएंगे। Then it is called the Gauss-Seidel method. Is this point clear or not? Yes, sir. Okay, sir. हाँ, अच्छा। तो इसमें थोड़ा सा और एक देखिए, ये बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। और इसमें जब हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, एक तो ये वोल्टेज जो सेकंड इटरेशन में आया, वोल्टेज आया, जो भी वोल्टेज आया वो थर्ड में रख देते हैं, थर्ड वाला फोर्थ में से नेक्स्ट वोल्टेज रखते जाते हैं। तो वोल्टेज हम थोड़ा अपडेट, इफ वी अपडेट द वोल्टेज, जिससे ये रिटर्न VI मींस वोल्टेज ऑफ एनी बस इज फर्दर अपडेटेड बाय एक्सीलरेटिंग फैक्टर। एक वोल्टेज को अगर हम अपडेट कर दें, सपोज करिए सेकंड इटरेशन में कुछ वोल्टेज आ रहा है 1.1 और थर्ड इटरेशन में वोल्टेज आया 1.09, तो और फिर एट्थ में क्या होगा, इसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ने जा रहा है। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, जो सेकंड वाला था 1.09 उसको हम नेक्स्ट इटरेशन में रखने की बजाय हम क्या करते हैं कि एक्सीलरेशन फैक्टर लगाते हैं। सपोज ये फर्स्ट में ये वोल्टेज आया था, सेकंड में ये आया था, फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस था, सपोज ये 1.1 से 1.09, तो 0.01 का फैक्टर डिफरेंस आ गया, उसमें हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर और लगाते हैं, एक्सीलरेटिंग फैक्टर। लेट इट बी से 1. हमने इसमें सपोज इसको कह दिया, इसको 1.5 टाइम्स कर दो, तो 1.5 टाइम्स मीन्स जो 1.01 था, 0.01 था उसको 1.5 गुना कर दिया, 1.5 टाइम्स करके और सेकंड में ऐड कर दिया। तो उसी डायरेक्शन में हम थोड़ा सा इंक्रीज करके वोल्टेज लगाते, क्योंकि ये पता लग रहा है वोल्टेज डिक्रीज डायरेक्शन में हो रहा है,
तो हम उसको थोड़ा एक्स्ट्रा डिक्रीज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सीलरेटिंग फैक्टर। मींस प्रीवियस इटरेशन एंड जस्ट इटरेशन, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके प्रीवियस में ऐड कर देंगे, देन इट इज द न्यू एक्सीलरेटेड वोल्टेज। तो अब जो मैंने यहाँ पे कहा था, यहाँ पे मैंने कहा था वोल्टेज जो यहाँ निकला था वो नेक्स्ट में, नेक्स्ट निकला था वो नेक्स्ट में रखने के बजाय उसको साथ के साथ एक्सीलरेट भी करते जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, नंबर ऑफ इटरेशन कम हो जाते हैं, लेकिन चांसेस क्या हो जाता है कि आपका सिस्टम कन्वर्जेंट, अगर आपने गलत डायरेक्शन में मूव कर दिया तो सिस्टम कन्वर्जेंट की जगह डाइवर्जेंट हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अगर आपने सपोज करिए 1.1 से 1.09 होना था और आप गलत डायरेक्शन में चले गए, अपोजिट चले गए, 1.11 लिख दिया, तो वो डाइवर्जेंट बढ़ता चला जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड the system will not diverge. So this is the method of, this is called the Gauss-Seidel method. इसकी all theory, थोड़ा सा detailed explanation, then the flow chart, then the numerical question. This thing we will take in the next class. Okay? तो इसमें कुछ पूछना किसी को? Anybody want to ask anything in this? इस पे एक numerical कराऊंगा, फिर इसका प्रोग्राम कराऊंगा। You want anything? इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा, इसके अलावा आप लोग एक दूसरे से भी कांटेक्ट करके रखिए। अगर किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है तो एक दूसरे से हेल्प लीजिए एंड